वेलकम चिल्ड्रन इन एक्टिव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में टू टाइप्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रेस्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है? फोर टाइप्स: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन वी हैव ऑलरेडी देखी। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन एंड गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। For example like magnesium when react with oxygen gives magnesium oxide. So this magnesium oxide gives a single product. This is given the single product and we have to balance this equation. How you will balance this equation? Oxygen, there is two oxygen atoms, but in right side there is one oxygen atom. For balancing you have to put a 2 here, and in the magnesium, before magnesium you put. And in the decomposition reaction, zinc carbonate when heated gives zinc oxide and carbon dioxide. This is the decomposition reaction. Here zinc carbonate break down and gives two or more than two compounds or products. That's why it is known as decomposition reaction. Similarly, AgBr decomposes in the presence of sunlight, in the presence of light, gives silver and bromine. So this is also decomposition reaction. You have to balance this equation. Then in right side bromine is 2 and the left side bromine is 1. So you put here 2 and silver also 2. So before silver you also put 2. So this is the balanced chemical equation. Now the third type of reaction is the displacement reaction. What is the meaning of displacement reaction? Displacement means change the position. Change the position. Who can change the position to the which one? Now the chemical reaction in which highly reactive elements means metal displaces less reactive element from its salt solution is known as decomposition reaction. For example, first you see the example like zinc. When zinc reacts with copper sulfate gives zinc sulfate and copper. This zinc is highly reactive as compared to copper. So it gives a zinc sulfate. So zinc can displace the copper from its position and give zinc sulfate and copper. So this reaction is known as displacement reaction. Similarly, magnesium when react with hydrogen chloride gives magnesium chloride and hydrogen. This is also displacement reaction. Here magnesium is more highly reactive as compared to hydrogen. So magnesium displaces hydrogen from its position and gives magnesium chloride and hydrogen gas. This is also a displacement reaction. So what is displacement reaction? When highly reactive element or metal displaces less reactive elements from its salt solution. Remember this, from its salt solution gives different products. They give different salt and different metal. This is known as displacement reaction. अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? कोई रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी दो सॉल्ट सोल्यूशन आपस में कंबाइन करके, आपस में मिक्स करके, नॉट कंबाइन, आपस में मिक्स करके डिफरेंट टू प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आते हैं एग्जांपल की तरफ। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक कंपाउंड्स है। जिंक सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट कंपाउंड है। दोनों का सोल्यूशन मींस वाटर सोल्यूशन होना चाहिए, तब जाकर ये रिएक्ट करेगा। इफ दे आर इन सॉलिड स्टेट, यदि ये सॉलिड स्टेट में है तो ये रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो ये जब इसको हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन बना देते हैं और इसको रिएक्शन करवाते हैं तो इसका रेडिकल्स इंटरचेंज हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल? रेडिकल मीन मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसमें टू रेडिकल्स है, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। सिमिलरली जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फेट दो टू रेडिकल्स है। ये टू रेडिकल्स आपस में इंटरचेंज कर लेता है। मैग्नीशियम पॉजिटिव रेडिकल है, क्लोरीन नेगेटिव रेडिकल है, जिंक पॉजिटिव रेडिकल है, SO4 नेगेटिव रेडिकल है। तो मैग्नीशियम पॉजिटिव रेडिकल इसका नेगेटिव रेडिकल को ले लेता है और मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली जिंक पॉजिटिव है, वो इसका नेगेटिव रेडिकल को लेकर जिंक क्लोराइड फॉर्मेशन करता है। इस तरह से वो लोग आपस में रेडिकल का इंटरचेंज करता है और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is definition? The chemical reaction in which two compounds interchange their radicals are known as double displacement reaction. This is very important reaction. These are double displacement. Why? Because the two radicals interchanging their
two compounds interchanging their radicals. Two compounds interchanging their radicals. So it is known as double displacement reaction. Children, ये आप लोग YouTube में मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप लोग पूरे प्यार मुझे दे रहे हो, लेकिन आप लोगों को यदि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एक्टिव एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप लोग मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो। मेरे साथ यदि कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431913105। इस नंबर के साथ भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या गूगल प्ले स्टोर से आप एक्टिव एजुकेशन क्लास ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी मुझे लाइव चैट कर सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगी। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे H2SO4। H2SO4 एक एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन किया, NaOH बेस है, जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज किया अपना रेडिकल्स को तो फॉर्मेशन किया Na2SO4 प्लस H2O। इस रिएक्शन का कुछ अपना स्पेशल भी नाम है, क्योंकि वो एसिड है और ये बेस है, इसलिए ये इस एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक पार्ट है। क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का स्पेशल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच acid react with base gives salt and water, this is known as neutralization reaction। याद रखिएगा, जब भी कभी एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन किया, ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसका स्पेशल नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी हम लोग रिएक्शंस पढ़े, दिस रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस होता है इसमें आइदर हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट इवॉल्व होता है। कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आइदर हीट एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो हीट इवॉल्व होगा। जब रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जब किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ईच एंड एवरी रिएक्शंस में कुछ ना कुछ वो हम लोग को पता चले या नहीं चले, उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी सिर्फ हीट फॉर्म में ही नहीं, दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जैसे क्रैकर बर्स्टिंग होता है तो उसमें क्या होता है, लाइट भी होता है, साउंड भी होता है, हीट भी होता है। तो इसी तरह से कुछ कुछ रिएक्शंस जो हैं जिसमें सिर्फ हीट ही नहीं दूसरे तरह के एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिसमें एनर्जी का प्रोड्यूस होता है, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया क्रैकर्स। उसी तरह जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता है, साथ में वाटर वेपर मिलता है, साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस रिएक्शंस में द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एनी एनर्जी इवॉल्व, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Similarly, just reverse endothermic reaction, the chemical reaction in which heat absorb, जिसमें हीट absorb होता है, वैसा chemical reaction जिसमें हीट absorb होता है उसको हम लोग endothermic reactions बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो उसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग इस एग्जांपल को पहले पढ़ चुके हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो हमने क्या बोला, दीज ऑल रिएक्शंस आर टू टाइप्स, exothermic reaction and endothermic reaction. The exothermic endothermic is not a part of this type, not a type of reaction। जो कोई भी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसमें, आइदर हीट इवॉल्व करता है या एब्जॉर्ब करता है। चिल्ड्रन, आप लोग को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ मेरे लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। मेरा ऐप का लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उससे लाइव क्लासेस कर सकते हैं, आप उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को ऐसा नहीं सोचिए कि आप लोग को बहुत पैसा लगेगा, आप लोग बिना पैसे में भी टेस्ट सीरीज या लाइव क्लासेस मेरे साथ डेमो क्लासेस कर सकते हैं। आपको पसंद आया तो आप जाकर उसको ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज करने का जरूरत नहीं है। आप पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए और एक दो ट्रायल लाइव क्लासेस का ट्रायल कीजिए।